बात करेंगे अबाउट आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है? Isomers is what? Actually, isomers is a molecular formula is same. In the what? Maybe sometimes structural arrangement is same or different. तो यहाँ पे हम बात करेंगे isomers. Isomers क्या है? आपका molecular formula same है. अगर molecular formula same है, उसके बाद हमें चेक करना होता है bonding connectivity, right? अगर आपकी bonding connectivity is different, तो what? That's known as what? Structural isomers. अगर आपकी bonding connectivity same है, तो what? That's known as stereoisomers. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं structural isomers. Structural isomers also what known as constitutional isomers. Also it is known as regioisomers. Structural isomers में क्या होता है? आपका molecular formula सेम होता है, but structural arrangement is different. What? Molecular formula आपका सेम रहेगा, but structural arrangement is different. Okay. Structural isomers classifications in 6 types. जैसे आपका chain isomers, functional group isomers, positional isomers, ring chain isomers, metamers and protamerisms. ओके, तो हम वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स आपका क्या है? इट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। चेन आइसोमर्स क्या है? इट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ योर कार्बन एटम। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपने पढ़ा है इन 12th साइंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट्स इट्स पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। यस, that's known as chain isomers. The what? A different arrangement of carbon atoms is known as chain isomers. Clear? Next हम जाएंगे positional isomers. तो positional isomers में क्या होता है? आपका functional group same रहेगा, but the positions of the your functional group it changes. Clear? Please यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपका functional group same रहेगा, but the positions of isomers is different. Positions of your functional group is changes. Example what? N-butanol. Okay, इसको हम ये भी बोलते हैं 1-butanol. Clear? और इसका क्या बोलते हैं? 2-butanol. मतलब means what? 1-butanol and 2-butanol. The both are positional isomers. और one of the most famous example है ना जो आप लोग पढ़ते हो इन aromatic compounds में, ortho meta para xylene. Yes, आपका ये ortho meta para क्या है? Yes, it is a type of positional isomers. जैसे orthoxylene, metaxylene and paraxylene. Clear? जैसा अगर आपको जैसे अगर मैं xylene की बात करूँ तो आपका xylene ये है. Clear? तो यहाँ पे confusion create मत करना. It's orthoxylene, it's metaxylene and it is paraxylene. Yes. Clear? Ortho, meta and para. It's ortho, it's a meta and it's a para. तो ortho, meta and paraxylene वो आप क्या? वो आपका positional isomers है. Clear? मैं again इसको repeat करता हूँ. आपका functional group same रहेगा, but positions is different. That's what known as positional isomers. Okay. थर्ड पे आएंगे. थर्ड इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यस, ये भी आपने पढ़ा होगा. ओके, आपका यहाँ पे क्या है? ओके, यहाँ पे व्हाट? योर फंक्शनल ग्रुप इज चेंजेस. यस, सी यहाँ पे क्या था? आपका फंक्शनल ग्रुप सेम था. यहाँ क्या होगा? आपका पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया. द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज व्हाट? एसिड एस्टर. यस, द एसिड एस्टर इज व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. आल्सो व्हाट? अल्डिहाइड कीटोन्स. Also primary, secondary and tertiary amines. It is also example of functional group isomers. Also what? Cyanide and as well as what? Isocyanide. वो भी आपका examples of what? Functional group isomers है. Also आपका alcohol ether. Clear? अगर हम बात करें जैसे अगर हम डिस्कस करते हैं जैसे आपका ये क्या है? आपका N-butanol. Clear? तो N-butanol and diethyl ether. Yes. What happens? Yes, the both are functional group isomers. Clear? सेकंड थिंग ऑल्सो अगर हम बात करें ना प्रोपेनोइक एसिड्स एंड ऑल्सो व्हाट? यस, मिथाइल एसिटेट्स. यस, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. यस, व्हाट हैपेंस? सी नो व्हाट? आपका एसिड था, यहाँ एस्टर हो गया, मतलब व्हाट? पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया. यहाँ पे क्या था? आपका ब्यूटेनॉल ईथर. व्हाट हैपेंस? ना आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया. दैट्स व्हाट? दैट्स नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. क्लियर? थर्ड आएंगे. थर्ड इज व्हाट? फोर्थ आएंगे. आई एम सॉरी. फोर्थ आएंगे. इट्स अ रिंग चेन आइसोमर्स. क्लियर? इट्स अ रिंग चेन आइसोमर्स. रिंग चेन आइसोमर्स क्या है? इससे ना व्हाट यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है आपका IHD इज द सेम. यस, व्हाट इज IHD? द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. व्हाट इज IHD? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी. अगर हम उसके फार्मूला की बात करते हैं IHD is equal to what? C+1 minus H/2. C+1 minus H/2. So what? It's an index of hydrogen deficiency. आपका IHD सेम रहेगा. Example
उसी उसके उसके उसका जो नाम है ना, वहां से आपको यू गॉट द आइडिया। रिंग चेन मींस व्हाट? रिंग फॉर्मेशन टेकन प्लेस, मतलब आपका एक रिंग है और दूसरा चेन है। क्लियर? यहाँ नाम से ही आपको एक आइडिया आता है। तो यहाँ एग्जांपल अगर हम लेंगे, एग्जांपल हमारा क्या है? प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन। यस, प्रोपीन, अगर प्रोपीन का अगर आप एच फाइंड करोगे तो भी बनाएगा, और साइक्लोप्रोपीन से उसका भी एच फाइंड करो, उसका भी बनाएगा। तो मतलब व्हाट? तो बोथ द कंपाउंड्स हैव एच इज अ वन, राइट? दैट्स आल्सो वन। तो दे से यस, एच इज द सेम। व्हाट हैपेंस? रिंग फॉर्मेशन टेकन प्लेस। Clear? That's why it's called the ring chain isomers. Clear? Second is whatever यहाँ पे मैंने trans to butene लिखा है, but आपको 6 to butene भी ले सकते हो, 1 butene भी ले सकते हो। तो what about that's trans to butenes and cyclobutenes? Yes, both are ring chain isomers. Clear? अगर हम जैसे थर्ड पे आए, थर्ड is what? It's a butadiene. Yes, butadiene is equal to what? It's a butadiene. यस, क्लियर? तो यहाँ पे आपका एच डी क्या है? यहाँ पे आपका एच डी है और 2 है। तो यहाँ पे आपका एच डी क्या है? 2 है। प्लीज है ना, व्हाट इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इट्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट? यहाँ पे आपकी रिंग फॉर्म होती है। अभी आते हैं कमिंग टू मेटामर्स। यस, मेटामर्स इज अ वेरी यूनिक आइसोमर्स हम बोल सकते हैं। बिकॉज़ ना सी मेटामर्स हर जगह यूज नहीं होता है। मेटामर्स कहाँ पे यूज होता है? कि जहाँ पे आपका बाइवैलेंट एटम है, मतलब what different arrangement around bivalent functional group. Yes, example the most common example is ether, जो हम लोगों ने पढ़ा है, right? It's a diethyl ether and the what? Methyl propyl ether. Yes, this is the example of what? Metamers. Same जैसे आपका मेटामर्स, जैसे मेटामर्स आपका ईथर में है, same is thioether. आपका जो सल्फर है यहाँ पे जैसे आपका O है, what is that? It's a bivalent. Clear? Right? जैसे यहाँ पर आपका सल्फर है, तो what? Yes, what happens? वो भी आपका बाइवैलेंट है। So what? मेटामर्स हर जगह अप्लाई नहीं होता है। मेटामर्स अप्लाई टू what? Bivalent functional groups. Yes, different arrangement around bivalent functional groups. Yes. Last one आएंगे protomers. Yes, protomers is one of the most important part of the structural isomers। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेसिक ना व्हाट कीटो इनोल ऑटोमरिज्म। तो यस ना व्हाट अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोमरिज्म में क्या होता है? व्हाट एग्जांपल हम लेंगे, जैसे ये आपका कीटोन्स है, दैट्स द कीटोन्स, ये आपका H है। सो व्हाट हैपेंस? योर हाइड्रोजन इज शिफ्टेड, व्हाट योर हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टू yes, that's called the what? The what? Ketone. Ketone is converted into enol. See ना what? See इसके wording में है ना please, enol. Enol क्यों? In माने what? In माने double bond. In माने double bond. All माने what? Alcohol. Yes. So enol. Clear? So keep it in the minds कि ये आपका enol कहाँ से पढ़ा? Enol. But in माने double bonds, all माने alcohols. So what? Yes, that's what called as a what? Keto enol proton. ये आपने frequently पढ़ा होगा, BSc में आपने frequently पढ़ा होगा, even आपने अभी पढ़ा होगा। But yes, the many types of tautomers are exist. Example: imine, enamine tautomerisms. Yes, it's a imine, and what the imine is converted into enamines. So it's a what? Imine, enamine tautomerisms. That's a what? Nitroso-oxime tautomerisms. यहाँ पे क्या होता है? जैसे ना व्हाट यहाँ भी आपका ये H है, ये ना, तो what the H is shifted to here and it's O. So what was nitroso-oxime tautomerisms? Clear, right? And also what the last one is what? Nitro-acid. Yes, no, what nitro compounds with alpha hydrogen atoms. Nitro compounds, yes, no, what it's the most important things. Because ना what ये tautomerism हर जगह नहीं होता है. Because what you must require alpha hydrogen atom to nitro compounds. Clear? So what happens? It's shifted to here and goes to the OCS. That's called the what? Nitro-acid tautomerisms. यहाँ भी अगर दिखाना है तो यहाँ भी ये H है, ये H यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है? तो it is a what? It is a all over the picture about the what? About the structural isomers. अभी नेक्स्ट हम जाएंगे about स्टीरियोआइसोमर्स। ओके, स्टीरियोआइसोमर्स हम किसको बोलते हैं?
किसको बोलेंगे? जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी सेम है, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। That's called the what? That's called the stereoisomers. Clear? तो अभी हम नेक्स्ट हम जाएंगे अबाउट stereoisomers. Okay, let's go for stereoisomers. Stereoisomers क्या है? Stereoisomers ये है कि आपका molecular formula and structural arrangement are same, but what happens? Arrangement of atoms in space is different. Means here क्या है? यहाँ पे आपका molecular formula as well as structural arrangement is same है, but आपका जो एटम्स जो स्पेस में अरेंज है वो डिफरेंट है। ओके, स्टीरियोआइसोमर्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, वी कैन से कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड वी कैन से कन्फर्मेशनल्स। क्लियर? ओके, ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन हमें होता है कि कॉन्फिगरेशन क्या है, कन्फर्मेशन क्या है, तो ये चीज को समझ लो। कॉन्फिगरेशन हम किसको बोलेंगे? इट्स नॉट इंटरकन्वर्टेबल। यस, कॉन्फिगरेशन वर्ड कभी भी आपका इंटरकन्वर्ट नहीं होता है। एग्जांपल जैसे सीज और ट्रांस, जैसे मैं आपको बोलूंगा तो सीज कभी ट्रांस नहीं होता है, ट्रांस कभी सीज नहीं होता है। सॉरी, क्लियर? व्हाट उसके लिए ओके, व्हाई इट इज नॉट इंटरकन्वर्टेबल? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी हाई, यू रिक्वायर द वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लाइक ओके, सीज टू ट्रांस आपका कन्वर्ट होगा, व्हाट यू रिक्वायर द फोटोकेमिकल लाइट। मतलब व्हाट? दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एट अ रूम टेंपरेचर, दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एट अ रूम टेंपरेचर। क्लियर? जब कन्फर्मेशनल वो क्या है? इट्स अ इंटरकन्वर्टेबल। यस, so what happens? The amount of energy is very low, which is available at a room temperature. So what happens? Configurational is not interconvertible, but conformation is what? It is interconvertible. That's why वो interconvert नहीं हो रहे हैं, इसलिए what हम उसको बोलते हैं rigid molecule, है ना? वो interconvert नहीं हो रहे हैं, so what हम उसको बोल रहे हैं rigid। Okay, वो rigid है, इसीलिए what हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। जैसे ना आप बोलते हैं कि मेरे पास सिस ट्यूबिडिन्स है, ट्रांस ट्यूबिडिन्स है ना, what? क्यों आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो? Why? Because of its rigidity. उसके बाद उसकी rigidity है इसलिए। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे what? ये क्या है आपका? ये आपका फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है। ओके, और यू कांट सेपरेटेड। आप भी बोलते हो कि ये इक्लिक इथेन है, ये स्टीरिक इथेन है, कभी नहीं। What? ओके, ये कन्फर्मेशनल क्या है? ओके, इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम एक्चुअली ये भी बोलते हैं कन्फर्मर्स, इसको हम ये भी बोलते हैं कन्फर्मर्स। See, you know what? Okay, please, you know, keep it in the minds. Conformers is not isomers. ये अपने माइंड में फिट कर दो। Conformer is not isomers. It is just different arrangement of your molecules. We can say 2D arrangement, 3D arrangement, we can say eclipse figure. Yes. ना हम बोलते हैं ना what हमारा eclipse इथेन, staggered इथेन, clear? या staggered butane, clear? तो ये क्या है? ये आपका आइसोमर्स नहीं है। It is different arrangement of atoms. So keep it in the minds that conformer is not isomers. It is just different arrangement of that's your compounds. Clear? Okay. अभी हम यहाँ पे आते हैं configurations. Yes. Configuration क्या है? It's again classified into two parts: enantiomers and diastereomers. Yes, ना what? Again, that's a lot of confusion is created कि enantiomer क्या होता है, diastereomers क्या होता है, what ये बहुत confusion create होता है। तो please यहाँ पे एक बार समझ लो what? Enantiomers we can say also optical isomers. Enantiomer को actually एक याद रखो कि it's a mirror image but not superimposable. जब ये क्या है? It's not a mirror image. अब जब mirror image है ही नहीं तो superimpose कहाँ से होगा? Clear? So what? Yes. तो enantiomer क्या है? It's a mirror image but not superimposable. You know what? See ना what superimposable ना हम बोलते हैं ना what it is. तो what अगर हम उसको रखते हैं ना what is? तो what happens? Thumb is here. Clear? तो वो superimpose नहीं है। Clear? तो it's not a superimpose. जब dash मतलब क्या है? वो mirror image है ही नहीं। It's not mirror image. Okay. Dash मतलब also what have ना what may or may not be chiral. Yes ना but यहाँ पे हम एक concept पढ़ेंगे. Okay because मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि it's may or may not be chiral. Because ना what यहाँ से हमारा एक concept निकलता है. वो concept निकलता है वो क्या है? Mesocompounds. इसको हम डिस्कस करेंगे है ना जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम डिस्कस करेंगे कि mesocompounds क्या है। Now what happens? Okay, is diastereomers also what have two or more than two stereocenters. Okay, again questions arise. Stereocenter क्या है ना कि that's ना what के आपका group changes at which carbon atom, मतलब एक ऐसे कार्बन पे जहाँ पे ग्रुप चेंज हो रहे हैं
group changes at which carbon atom that known as stereocenter. ठीक है, keep it in mind. Stereocenter किसको बोलेंगे? I'm again repeating. अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो. The group changes at which carbon atom that carbon atom known as stereocenter. Clear? So what? It is a stereocenter. Again, what dash numbers what are classified in two parts. We can say that what erythrothrio. Actually ये basically ना what ये basically आप कहाँ पढ़ोगे? आप पढ़ोगे इन carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे कि erythrothrio क्या है? Okay, erythrothrio से again that's what are two new bodies coming. Anomers and epimers. Anomers क्या होता है? Anomers हमेशा C1 के लिए अप्लाई होता है. Anomers जो अप्लाई होता है वो C1 के लिए होता है और epimers किसके लिए होता है? एक्सेप्ट C1. वो C1 को छोड़ के बता ना और हम बोलते हैं C2 एपिमर, C3 एपिमर, C4 ये जब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स तब हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, राइट? तो अभी जैसे याद रखो कि एनोमर्स एपिमर्स क्या है. इट्स बेसिकली इट्स erythrothrio and the what एनोमर्स एपिमर्स. क्लियर? सो व्हाट इज एनोमर्स हम क्या पता है उनका कांसेप्ट इट्स C1 और एपिमर्स क्या है? इट्स एक्सेप्ट द C1. ओके, कमिंग टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. जो केस है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है. ओके, मैं ना वो एक सिंपल आपको वर्डिंग में कहूं तो वर्डिंग में ये है रेस्ट्रिक्ट टू रोटेशंस. यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सबसे इंपोर्टेंट वर्ड आपका यही है रेस्ट्रिक्ट टू रोटेशंस. यस, जहां आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है वहां आपका GI आएगा ना. व्हाट सी आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड GI नो. इट्स अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो जहां आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है तो व्हाट वहां पे आपका आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. एग्जांपल जैसे है ना व्हाट आपका cis trans. एग्जांपल हम बोलेंगे आपका cis trans. ओके, यस, व्हाट हैपेंस क्या था यहाँ पे व्हाट द एंट्री ऑफ डबल बॉन्ड्स. आपका डबल बॉन्ड की एंट्री आ गई. सो व्हाट हैपेंस रोटेशन रेस्ट्रिक्ट. ओके, इसमें मैं यहाँ पे आऊंगा कि कंफर्मेशन में क्या था. कंफर्मेशन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था. इट इज अ व्हाट? इट इज अ सिंपल सिंगल बॉन्ड्स. सो व्हाट हैपेंस? इट्स अ सिंगल बॉन्ड, इट्स फ्री टू रोटेट. क्लियर? सो व्हाट? यस, व्हाट यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं. यस, that's what it's falling in category of conformers. but जैसे ही आपका डबल बॉन्ड आ गया, सी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पे आएगा? जहां डबल बॉन्ड है और जहां रिंग है. यस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पे आएगा? जहां आपका डबल बॉन्ड है एंड जहां आपकी रिंग है. यस, वहां व्हाट दैट इज द एंट्री ऑफ GI. तो आपका जो सिंगल बॉन्ड है उसको व्हाट इट्स फ्री टू रोटेट. आपका जो C1 फॉर्मेशन से वो फ्री टू रोटेट है. यस, सो दैट इट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ कन्फर्मेशंस. जब व्हेनेवर देयर इज अ एंट्री ऑफ डबल बॉन्ड्स और द रिंग व्हाट हैपेंस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस. सो एंट्री ऑफ GI. तो लेट्स गो फॉर GI. अब हम जाएंगे अबाउट GI. सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्या है? व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस. यस, GI. सी मैं GI को हमेशा बोलूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. सो कीप इट इन द माइंड. तो GI के लिए सबसे इंपोर्टेंट वर्ड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस. यस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पे आता है? व्हेन देयर इज अ एंट्री ऑफ पाई बॉन्ड्स. यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हाउ डू यू गेट द आइडिया कि मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां पे है? जहां एंट्री ऑफ द पाई बॉन्ड्स है वहां व्हाट देयर इज अ एंट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. सेकंड थिंग, यस, नो व्हाट डू यू सिग्मा बॉन्ड्स. यस, मैंने आपको हमने आगे डिस्कस किया था कन्फर्मेशंस. कन्फर्मर्स कहाँ पे होते हैं? बेसिकली कहाँ होते हैं? आपका जैसे इक्लिप्स ट्रिगर होता है तो कन्फर्मर्स में क्या होता है? इट्स फ्री टू रोटेट. तो यहाँ पे ऐसा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस कि व्हाई इट इज ओके. वहाँ एक्चुअली मैंने कहा था कि आपका फ्री टू रोटेट कब है? व्हेन योर मोटी इज असाइक्लिक. अगर आपकी मोटी असाइक्लिक है तो वहाँ आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं है. वहाँ क्या होगा? वहाँ इट्स फ्री टू रोटेट्स. The compound is what? A compound is free to rotate. Because what? It's eclipse, stagger, like this is exists. But when the rotation is coming, rotations exist in a cyclic compounds. Rotation exists is what actually? Yes. Whenever your compound is cyclic, that is the entry of restrictive rotations. Keep it in mind. So now what ये बहुत important चीज है कि आपका rotation restrict कहाँ होगा? अगर आपका मोटी
असाइक्लिक है तो वहां पे आपका कोई रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं है। कब होगा? व्हेन देयर इज द एंट्री ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। साइक्लिक मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? restrictive rotations, yes, because of that what the entry of geometrical isomers, clear? तो ओके अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जीआई को हमने क्लासिफाई किया है दो पार्ट में, बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड्स इस एक्सिस इज geometrical isomers and because of sigma bonds is एक्सिस एज जीआई। ओके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ओके इट्स अ वेरी कॉमन पार्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड की एंट्री आ गई तो व्हाट इट इज एक्ट्स एज अ geometrical isomers। जैसे अगर आपका सिंगल एक डबल बॉन्ड है, अगर आपका सिंगल एक डबल बॉन्ड है तो क्लियर जस्ट एक्सिस इज cis and trans and en gel, क्लियर राइट? जैसे आपका एक सिंपल एक डबल बॉन्ड है, क्लियर? तो राइट हमने ना डिस्कस भी किया था लाइक दिस a b h h, व्हाट हैपेंस? इट इज ट्रांस, इट इज h h, तो व्हाट इट इज cis, क्लियर? सो मतलब व्हाट cis and trans। ओके उसका एक एडवांस वर्जन से इट्स en gel जो हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड जुसामन, एंटीजन एंड जुसामन जो हम पढ़ेंगे एक्चुअली फर्दर। अभी हम ये देखेंगे कि हमारा जीआई कहां प्रेजेंट है, क्लियर राइट? तो जहां जहां आपका डबल बॉन्ड आ रहा तो व्हाट दैट्स द एंट्री ऑफ geometrical isomers, तो इट्स cis and trans and en gel। okay now what actually if your compounds have a multiple double bonds, if your compounds have a multiple double bonds, what happens? So maybe again it's classified in a three parts. Multiple double bonds classified in a isolated double bonds, conjugated double bonds and what? Cumulative double bonds। Isolated double bond में क्या होगा कि there is no relation between the double bonds, means what actually आपका एक double bond यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, right? So there is the place is not fixed, right? Maybe it is a 1 3, maybe it's a example suppose हम देखते हैं, सपोज अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 यस, तो यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड के बीच में क्या है 1 and 5 यस, वी कैन से 1 5 डाइन, वी कैन से 1 5 डाइन्स, क्लियर? तो व्हाट हैपन? इट्स a following category of isolated double bonds, क्लियर? सेकंड इज व्हाट? conjugated double bond, यस conjugations, मतलब एक को छोड़ के तुरंत नो व्हाट दैट्स एग्जांपल सपोज हियर yes immediately आपका एक डबल बॉन्ड है, example what is not stops here, maybe आप बोल सकते हो इस कंटिन्यू, मतलब ना व्हाट एक्चुअली वो कंटिन्यू भी हो सकता है up to 3 up to 4 whatever actually, but it is in conjugations, मतलब what एक डबल बॉन्ड छोड़ के दूसरा है, तो that's what the what conjugated double bonds, right? clear? okay अभी हम यहाँ पे आएंगे cumulative double bonds, yes means what is it? Continuously the bond is going on, right? Clear here like example is this, that is a what that is known as cumulative double bonds। okay यहाँ पे पहले एक बार समझ लो क्या यहाँ पे हमारा n क्या है? n is what number of double bonds, n क्या है हमारा number of double bonds। अगर आपका n का वैल्यू अगर odd है तो what happens? falling in category of GI। okay मैंने तो पहले भी कहा था GI क्या है? GI is a geometrical isomer, so don't be confused with the GI, right? okay तो GI क्या है आपका geometrical isomer। okay अगर आपका n का वैल्यू even है 2 4 6 तो what? it's falling in category of OI। OI मतलब what है? optical isomers, ठीक है? OI मतलब what है? optical isomers। okay इसको थोड़ा देखेंगे कि how it is and how can we understand these concepts। तो अगर इसे समझना है ऐसे मैंने कहा कि ना व्हाट इज n क्या है? आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्लियर? जैसे अगर आपका अल्कीन से तो अल्कीन में आपका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 यस, सो क्या होगा वो? इट्स अ व्हाट? इट्स अ falling in category of trigonal planar, means what the shape is planar, the sp2 में क्या होगा? shape is planar। तो what happens here? yes यहाँ पे क्या है आपके सपोज different groups, yes so here what happens? these groups and these groups, yes what are falling in the same plane। अगर आपके दोनों ग्रुप अगर आपके सेम प्लेन में आते हैं तो what happens? the entry of GI, geometrical isomers। let us see this example suppose yes yes क्या होगा? यहाँ पर n क्या है? number of bonds is what? even, so what it's what falling in category of what actually
ऑप्टिकल आइसोमर्स. यस, क्यों एक्चुअली सी हियर, यहाँ पे क्या है आपका, ये the one is in the plane or other is what, other is out of plane. Yes, so what, that's the following category of optical isomers. Yes, ना what, ये जिसको माइंड में फिट रखना कि अगर ये दो ग्रुप सेम प्लेन में है तो what, the following category of geometrical isomers. अगर ये दो ग्रुप is not lying in a same plane, मतलब different plane में है, क्लियर, कि ये आपका AB कहाँ है, इन द प्लेन है, ये CD कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन है, क्लियर. ये जैसे अगर आप देखते हो तो ये AB, क्लियर, दिस AB is what, AB is in the mode, क्लियर, और ये CD क्या है, is this, क्लियर ना. तो A क्या है आपका, it's in the plane, और CD क्या है, आउट ऑफ प्लेन. यस, so what happens, arrangement is like a tetrahedral. What, the arrangement is like a tetrahedral. Yes, so what, that's why it's falling in category of it's falling in category of optical isomers. Okay, आपने सुना भी होगा ना what, alien derivatives. Yes, कि why the alien is chiral, that is the reasons कि when the, okay, well, clear. तो ये क्या आता है, ये हम पढ़ेंगे actually, और ये बहुत important topics है कि alien का RNS, how do we find out the RNS of the aliens. Yes, one of the most important topics for the nomenclature. तो clear, ये हम पढ़ेंगे actually. तो ये one of the most important things ना what, okay, see ना what, it's not limited up to here, you can go beyond that. Example, suppose is here, ये क्या है आपका, 3 bonds है, ठीक है, तो क्या होगा, what is the n is equal to 3, तो क्या होगा, what, the all are in same plane, all are in same plane. So what happens, entry of GI. Now what, see, मैं actually कैसे रखता हूँ याद, मैं ऐसे रखता हूँ याद ना what, clear. अगर आपका डबल बॉन्ड है ये है, ठीक है, अगर सी ये वो था what, same plane, तो क्या होगा actually, it's a what, geometrical isomers. अगर मेरा एक बॉन्ड आया, optical isomers, तीसरा GI, fourth OI, fifth GI, sixth OI, clear. सिंपल है what, हम अगर रिपीट एक्चुअली, अगर आपका एक है, क्लियर, तो इट्स अ GI, ठीक है, सेकंड है इट्स अ OI, थर्ड GI, फोर्थ OI, फिफ्थ GI. और जैसे अगर ये दो सेम प्लेन में है तो एंट्री ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. जैसे ही अगर प्लेन चेंज हो रहा है, व्हाट हैपेंस, द एंट्री ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लो, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी दो, बिकॉज़ ना व्हाट द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट अप्लाई इन हियर. स्पाइरल बॉन्ड्स, यहां पे आपका n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, वहां पे आपका n क्या होगा, n इज व्हाट, नंबर ऑफ रिंग्स. क्लियर. तो व्हाट हैपेंस, ये आपका था अबाउट द व्हाट, अबाउट द डबल बॉन्ड्स, कि हाउ द डबल बॉन्ड्स इज एग्जिस्ट इज अ व्हाट GI एंड OI in the what, in the alien systems. Yes, in the what we can say cumulative double bonds. Clear. फर्दर हम जाएंगे ऑक्सीजन. यस, सी मैं आपको एक चीज बोल दूं, जहां डबल बॉन्ड है वहां व्हाट, देयर इज एंट्री ऑफ GI. क्लियर, जहां डबल बॉन्ड है वहां एंट्री ऑफ GI. ओके, ऐसे ना मैं आपको एक चीज और भी बोल दूं, जब हम पढ़ेंगे सीजन क्लास तभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा है, यस, लाइक दिस, तो यहां पे क्या है, yes, what happens, yes, now if you are one end, ना अगर आपका डबल बॉन्ड का कोई एक एंड, अगर आपका डबल बॉन्ड का कोई एक एंड सिमेट्रिकल है, जैसे H ME पकड़ लो, तो yes, what happens, this is not exist as a GI, ये आपका GI नहीं होगा. प्लीज है ना व्हाट, इट इज अ बॉक्स रूल. ये बॉक्स रूल को माइंड में फिट कर दो. क्लियर, कि अगर आपका डबल बॉन्ड का एक एंड व्हाटएवर ना, कोई भी एंड्स अगर सिमेट्रिकल से, सी ना व्हाट, नॉट विद द H, विद द एनी ग्रुप्स, तो व्हाट, यस ना व्हाट, ये आपका GI नहीं है, आपका GI ये है. दिस इज अ ज्योमेट्रिकल ना व्हाट दिस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. जब ये डबल बॉन्ड आपका GI नहीं दिखेगा, ये क्या है, इट इज जस्ट सिंपल डबल बॉन्ड. ये क्या है आपका, जस्ट सिंपल डबल बॉन्ड. एग्जांपल सपोज ये क्लियर. यस, राइट, ओके, चलो राइट, यहां एच लिख दो. ओके, यहां सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर. व्हाट हैपेंस, आपका डबल बॉन्ड है, व्हाट हैपेंस, उसका एक एंड, वन एंड, यहां भी आपका Me है,
यहाँ भी आपका एंड है. What happens if the one end is symmetrical? So what? It is not a GI. It is just simple double bond. Please इतना पढ़िए. one of the most important topics है. important box rule है. ये box rule को लिख दो. अगर आपका double bond का one end, if a double bond का अगर आपका one end if it is symmetrical, this is not a GI. It is just simple double bonds. Example suppose ना what यहाँ पे अगर हम कर दें यहाँ अगर हम S लगा दें, yes. Now not different, okay, yes. But what happens? But still it is symmetrical. Still this is not GI. Still this is not a GI. Clear? It is what? It is just simple double bonds. It is just simple double bonds. Let's take examples. Suppose हम example ये ले लें. Yes. Now check it. क्या होगा? CH3 है, H है, both are different. यहाँ CH2 है, clear? और यहाँ क्या है? आपका CH है. यहाँ क्या है आपका? CH2 है. यहाँ क्या आपका? CH है. Yes, both are different. Yes. This is the example of GI. ये आपका GI है. This is what? It is as a GI. ये आपका GI exist नहीं करता है. Why? Because what? The both are symmetrical point. या फिर जो दोनों के दोनों पॉइंट्स है वो सिमेट्रिकल यहाँ पे है, जब यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है. सो प्लीज इट इज अ बॉक्स रूल. ये आपको माइंड में फिट कर दो कि अगर आपका डबल बॉन्ड का वन एंड, अगर डबल बॉन्ड का वन एंड पे अगर सिमेट्रिकल ग्रुप अटैच है, और प्लीज ना व्हाट ग्रुप इज नॉट फिक्स्ड विद द एच, वो ऐसे कंसर्न नहीं है. मे बी एनी ग्रुप, राइट, मे बी एनी ग्रुप एक्चुअली. तो अगर कोई भी ग्रुप अगर आ गया, व्हाट हैपेंस? सो व्हाट दिस इज नॉट एक्सिस्ट. ओके, नाउ अभी हम यहाँ आएंगे जैसे ऑक्सीजन. क्लियर? अभी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे. ओके ऑक्सीजन. ओके ऑक्सीजन में क्या हुआ? आपका डबल बॉन्ड आ गया. यस, मैंने कहा जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां एक्चुअली आपका जीआई आएगा. बट आपको एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है. अगर सिमेट्रिकल आएगा तो वो सिर्फ डबल बॉन्ड है, वहां पे व्हाट आपके जीआई की एंट्री नहीं होगी. ठीक है? अभी हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन. यस, ऑक्सीजन में क्या होगा? यस, यहां पे आपका डबल बॉन्ड है. इट्स अ कार्बन. देखो ना व्हाट यहां पे कोई सिमेट्रिकल नहीं है ना, व्हाट सिमेट्रिकल एंड नहीं है. यस, तो ऑक्सीजन एक्सिस्ट एज अ जीआई है ना. यहाँ पे है ना व्हाट यू कैन यूज द वर्ड एक्चुअली. यहाँ पे क्या होगा? ए हाईएस्ट प्रायोरिटी ए है, इट इज अ ई. यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ए ओके, इट इज अ जेड. ओके, इट्स अ ई एंड ओके. हम ये ई जेड सी स्टार सब पढ़ेंगे आगे फर्दर. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली अबाउट द जीआई, राइट? क्लियर? नाउ व्हाट कम टू द अदर कंपाउंड. यस, अदर कंपाउंड्स आल्सो व्हाट इट हैज अ सी. ना प्लीज ना मैंने आपको कहा था एट वन एंड, not this end. Please ना व्हाट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. ठीक है? बिकॉज आप बोलोगे सर सिस्टम बिटवीन सर ए बी. नो सॉरी, मैंने आपको कहा था वन एंड, आपको एक एंड चेक करना. दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. डोंट से सर ये तो सिमेट्रिकल है ना. क्लियर? व्हाट ये दो डिफरेंट एंड पे है. व्हाट एम आई से at one end, कोई भी एक एंड पे अगर कोई ग्रुप सिमेट्रिकल है, व्हाट सी चेक इट यहाँ पे. तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज. ये क्या है? यस, ये आपका सिस टू ब्यूटेन से है. ठीक है? कमिंग टू द व्हाट ऐसे कंपाउंड्स में यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आल्सो जेड, इट इज व्हाट आल्सो ई. ठीक है? इमाइन कंपाउंड में क्या आएगा? यहाँ पे व्हाट आपका द एंट्री ऑफ डबल बॉन्ड्स. यस, इट इज व्हाट फॉलोइंग इन कैटेगरी ऑफ ई. It's a what? Falling in category of Z. Same as what? आपका vinyl anions. Yes. यहाँ भी आप A Z nomenclature यूज कर सकते हो. ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? Okay, yeah. We can say use what? Trans. तो यहाँ पे HH क्या है? HH what? HH is a in trans to that. Clear? So what happens? It's falling in category of no what? Trans. HH यहाँ पे क्या है? On seven sides. So what happens? It's falling in category of ना सी एंड ट्रांस कब यूज करना है, एजेड कब यूज करना है, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट, लेटर. क्लियर? तो ये क्या था एक्चुअली? इट इज अ ओवरऑल व्यू ऑफ द व्हाट अबाउट जीआई ड्यू टू पाई बॉन्ड्स. जीआई ड्यू टू पाई बॉन्ड्स. अब हम देखेंगे व्हाट अ जीआई ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स. अब हम देखेंगे व्हाट अ जीआई ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, यस, तो आपको पहले भी कहा था. ओके, ना व्हाट जब भी सिग्मा बॉन्ड आता है तो व्हाट फटाक से व्हाट दिमाग में क्या आता है? यस, इट्स फ्री टू रोटेट. Yes, it is free to rotate. But वो रोटेशन कब होगा? When your system is acyclic. Clear? ये माइंड में ना, ये अगेन आपका बॉक्स रूल है. प्लीज मैं आपको हमेशा बोलता
बोलता रहूंगा, तो यू हैव टू मेंटेन द बॉक्स रूल इन योर बुक्स। बॉक्स रूल मतलब व्हाट एक्चुअली ना, जैसे वो कुछ रूल्स है जो हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है, तो हम उसको हमेशा बोलेंगे बॉक्स रूल। तो ये भी आपका बॉक्स रूल है कि अगर आपका बॉडी असाइक्लिक है, व्हाट हैपेंस, इज फ्री टू रोटेट। क्लियर, सी यहाँ तो रोटेशन हो रहा है, मतलब व्हाट, जहाँ रोटेशन हो रहा है मतलब व्हाट, वहाँ जीआई की एंट्री पॉसिबल नहीं है। जीआई के लिए व्हाट यू रिक्वायर रेस्ट्रिक्टिव रोटेशंस, वो कहाँ फिजिबल है, व्हेन योर सिस्टम इज साइक्लिक। जैसे आपकी सिस्टम अगर साइक्लिक होती है, व्हाट द एंट्री ऑफ रेस्ट्रिक्टिव रोटेशंस, तो व्हाट यहाँ हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर, ओके, लेट्स सी द व्हाट मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ना व्हाट हम लोगों ने पढ़ा है ना, व्हाट साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, तो ये आपके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ओके, तो हम है ना व्हाट, हम यहाँ पे पता है फ्रीक्वेंटली वी यूज द वर्ड cis 1 2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपने पढ़ा भी होगा शायद ना, व्हाट कन्फर्मेशंस ऑफ दिस ना, ट्रांस 1 2, तो हम cis एंड ट्रांस क्यों यूज कर रहे हैं, वहां डबल बॉन्ड नहीं है। यस, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, व्हाट हैपेंस, वहां आपका सिस्टम साइक्लिक है, तो बिकॉज़ ऑफ साइक्लिक इट्स गोइंग टू बिकम रिजिड, बिकॉज़ ऑफ रिजिड व्हाट हैपेंस, अंडरगो रेस्ट्रिक्टिव रोटेशंस। क्लियर, सी इन व्हाट एक चीज मैं फिट दो, अगर आपकी सिस्टम साइक्लिक है तो वो रहेगी रिजिड, तो व्हाट हैपेंस, रेस्ट्रिक्टिव रोटेशंस, सो व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली एंट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर, सो व्हाट हैपेंस, इट इज अ सिस्टम ऑफ मोनोसाइक्लिक। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द बाइसाइक्लिक, डेकालिक एंड द व्हाट, इसका नाम है हाइड्रिडेन, इसका नाम है व्हाट, हाइड्रिडेन। तो सीज एंड ट्रांस ना व्हाट आपने पढ़ा भी होगा, सीज एंड ट्रांस डेकालिन, सीज एंड ट्रांस डेकालिन, सीज एंड ट्रांस डेकालिन। ठीक है, तो व्हाट वाज इट इज bicyclic compounds, we can say the fused compounds, we can say. Clear, also third is what, unsymmetrical bridged compound. Yes, one of the most important things, yes, no, bridged compounds आपका है ना, सी यहाँ साइक्लिक भी है, ऊपर से ब्रिज भी आ गया, व्हाट हैपेंस, यहाँ तो व्हाट आपकी रिजिडिटी ज्यादा बढ़ गई। क्लियर, मैंने तो कहा था साइक्लिक, यहाँ तो साइक्लिक भी आएगा और ऊपर से व्हाट, ऊपर से ब्रिज बन गया, व्हाट हैपेंस, इट्स अ मच मोर रिजिड, सो व्हाट हैपेंस, इट्स रेस्ट्रिक्टिव रोटेशंस। क्लियर, तो व्हाट हैपेंस, यस ना, बट जहाँ रोटेशन नहीं होता है वहाँ व्हाट इज एंट्री ऑफ जीआई। तो ओके, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है व्हाट एक्चुअली व्हाट नोन एज, दैट्स एक्सो, दैट्स व्हाट नोन एज एक्सो, और ये वाला जो बॉन्ड है व्हाट नोन एज एंडो। यस, तो यहाँ भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, ये हम पढ़ेंगे आगे एक्सो एंडो। क्लियर, ओके, अभी हम आते हैं यहाँ पे व्हाट स्पाइरल कंपाउंड्स। स्पाइरल कंपाउंड्स मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया, सेम एज एलिन, जो हमने यहाँ एलिन में डिस्कस किया था। एलिन में क्या था, व्हाट इज एन, एन इज व्हाट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे आपका एन क्या है, व्हाट इज एन, एन इज व्हाट नंबर ऑफ रिंग्स। ओके, स्पाइरल को अगर समझना है तो कैसे यू नो व्हाट वी कैन शूट लाइक दिस, यस, सी टू रिंग्स, वन रिंग इज व्हाट, वन रिंग इज इन द प्लेन। क्लियर, ये जो रिंग है आपकी कहाँ है, इन द प्लेन है, और ये रिंग कहाँ है आपका, आउट ऑफ प्लेन। It's attached to a same carbon atom. Yes, please. ना what यहाँ पे confusion create मत करना. Yes, ना what sometimes अगर आप जाते हैं ना इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में they will ask to you what is the difference between the spiral compounds and fused compounds and bridged compounds. Spiral compound क्या है? Spiral compound ये है. A two compounds, ना what a two moieties attached with the same carbon atom. इसको बोलते हैं spiral. Clear? इसको बोलते हैं स्पाइरल, राइट, मींस व्हाट, two rings attached to a same carbon atom, that's called what, a spiral. सपोज आपका ये है, yes, what is it, it's a fused compounds, मतलब व्हाट कोई ब्रिज नहीं है। क्लियर, थर्ड इज व्हाट, व्हाट हैपेंस यहाँ पे, यस, यहाँ पे आपका ब्रिज आ गया, तो व्हाट इज दिस, दैट्स कॉल्ड ब्रिजेड। क्लियर, सो व्हाट इज दिस, दैट्स कॉल्ड स्पाइरल कंपाउंड्स, इट्स कॉल्ड फ्यूज्ड and it's called what, bridged compounds. Yes, ना what the most important questions for the what viva आपका ना what आपका जब भी आपका ना what practicals में viva होता है, तो what ऐसे questions जनरली they are asking कि difference between the spiral compound, fused compound and the what bridged compounds. Yes, so that's what the spiral
मतलब what two rings attached with a sun carbon atom, clear, a fuse and the what bridges. Okay, अभी हम जाएंगे about the spiral. Spiral में क्या सीन है, what यहाँ तो मैंने दिखाया आपको 2 रिंग, is not necessary n number of rings, 1 2 3 4 5 6 whatever n number of rings what is going to be attached. So that's a right. Okay, okay, तो यहाँ पे how it is coming the entry of Gi and Oi. यहाँ से ना what ये मैंने सिंपली ये मैंने जो ड्रॉ किया इसे 2D, ये आपका 3D में ड्रॉ किया मैंने, क्लियर, कि आपकी ये जो रिंग है, ये जो रिंग है क्या है, इट्स इन द प्लेन, ये आपकी जो रिंग है वो क्या है, वो इन द प्लेन, ठीक है, वो जो ब्लैक वाला है वो क्या है, इट्स आउट ऑफ प्लेन, वी कैन से लाइक दिस, we can say like this, clear, is this, it's this ring is what, it's in the plane, और ये रिंग क्या है, out of plane, yes, ये होता है, clear, again that's how what, again in the plane, clear, और what out of, okay, जैसे actually अगर मैं यहाँ पे ना what you have to understood ये क्या होता है, कि सपोज यहाँ पे हम देख ले, ओके मैं पहले आपको बोल दूं ना, क्लियर, आपका इट इज अ व्हाट कार्बन है ना, ओके व्हाट इट्स लाइक है ना व्हाट CH4, तो ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, तो इस उसका शेप क्या होगा, शेप इज व्हाट, शेप इज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, व्हाट मैं शेप को हमेशा ऐसे रखूंगा यार, इज दिस, ये दो क्या है, दिस टू पॉइंट्स इन द प्लेन ना, सी ऐसे पकड़ लो, दिस टू पॉइंट्स, और ये दो बॉन्ड क्या है, इट्स ये दो बॉन्ड क्या है, आउट ऑफ प्लेन, यस, तो हमेशा व्हाट टेट्राहेड्रल को ऐसे रखो यार, क्लियर, टेट्राहेड्रल को ऐसे रखो यार, तो यहाँ पे क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल, क्लियर, तो ओके यस, तो आपको मैंने वहां भी कहा था, यस ये AB and CD क्या है, both are in same plane, what happens, entry of Gi, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर दोनों के दोनों ग्रुप अगर सेम प्लेन में है तो व्हाट, द एंट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके नेक्स्ट, सपोज यस क्या होगा, AB and CD, yes, what happens, the both the groups are in different plane, a CD क्या है, CD is what, flying in the plane, clear, और ये AB क्या है, like this, ये AB आपका ऐसा है, yes, मतलब what, the both groups are in different plane, मतलब एक आपका in the plane है और दूसरा एक in the plane है और दूसरा out of plane, yes, तो what happens, आपका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, like a tetrahedral, yes, so that is the entry of optical isomers. There is an entry of optical isomers. Clear? Okay, yes, now what please see, it is not limited up to here. You can say like this further. Yes, यहाँ पे क्या होगा, see no, okay, yes, no what, AB and CD, yes, no, right, so what happens, AB and CD what, the both are lying in a same plane, so what happens, entry of Gi, yes, ना यहाँ से आपका रूल्स है, what is the n, n क्या है, number of rings, n क्या है, number of rings, अगर आपका n, yes, okay, so what यहाँ clear, n क्या है, number of rings है ना, what if it is odd, मतलब ना what n क्या है, आपकी एक ही रिंग है तो what happens, is falling in category of Gi, अगर आपका n दो है 1 2 तो क्या होगा, Oi, अगर आपका 1 2 3 मतलब what, Gi, C, yes, so what, अगर आपका n का वैल्यू अगर आपका odd है तो what happens, is falling in category of Gi, अगर आपका n का वैल्यू even है तो what, is falling in category of optical isomers, yes, no, it's all about the introduction of the what, geometrical isomers. Geometrical isomers में एक चीज याद रखो, यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज हम Gi कब बोलेंगे, restrictive rotations, कि जहाँ आपका रोटेशंस आ गया, yes, there is an entry of Gi.
सेकंड थिंग मैंने आपको कहा था है ना, और आपका दूसरा बॉक्स रूल्स कि बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यस कि आपका सिग्मा बॉन्ड्स है तो वहां पे आपका जीआई कैसे आएगा, जीआई कब नहीं आएगा, व्हेन सिस्टम इज असाइक्लिक, तो व्हाट हैपेंस, इट्स फ्री टू रोटेट असाइक्लिक, बट इन साइक्लिक व्हाट हैपेंस, relation to rotations, so what are falling in category of geometrical isomers, clear। पर जीएम में और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ग्रुप्स, अगर कोई आपका एक एंड, अगर एट वन एंड, अगर आपका एट वन एंड, यस both the groups are similar, so what happens, what this is not a GI, it's a just double bond। इसलिए पता है आप बोलते हो ना प्रोपीन, कभी आपने बोला है सिस प्रोपीन, कभी नहीं बोलोगे ना, बिकॉज़ प्रोपीन इज व्हाट ना, फॉर एज में लिखा है आपका प्रोपीन ही है, तो प्रोपीन इज नॉट जीआई, क्लियर। प्रोपीन में आप कभी भी आप ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हो कि सिस प्रोपीन ट्रांसफर, नो, नॉट पॉसिबल, व्हाई एक्चुअली, बिकॉज़ एट वन एंड इज गोइंग टू बिकम सिमेट्रिक। तो यहां पे ना व्हाट मेनली 3-4 पॉइंट्स है, हैप्पी लर्निंग,